तो आई रिमेम्बर वो मुझे बचपन में बोलते थे, बेटा विकास बड़े होके क्या बनेगा, और साथ में प्रॉम्प्ट भी करते थे, बोल डॉक्टर बनूंगा। मुझे एकदम क्लियर था कि मुझे कहीं बाहर जाना है, कुछ भी नहीं पता था। वहां जाते ही ऑल अलोन, पहले दो चार महीने इट वाज अ शॉक। तो आखिरी में आते आते लगा कि अरे अगर मेरा ये प्री-पीजी क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। एक इंस्टेंट हुआ, instance was which again was a major turning point. It changed my perspective towards my patients, towards academics, towards surgery, towards peers. For me, it's like more of a priority management than time management. It was clear right from day one कि मुझे practice करना है, बिल्कुल clear। Create something which doesn't exist, which can impact many lives. अगर उनसे पूछो कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, and they'll say डॉक्टर बनाना। So, hello everyone. Today we are joined by none other than the man, the myth, and the legend, Dr. Vikas Mittal. He is a consultant cornea surgeon and the medical director of LJI Institute in Ambala. He's someone with over 20 years of experience and he boasts an impressive resume. He completed his MBBS from BJ Medical College in Pune and his MS in ophthalmology from Pandit Jawaharlal Nehru Medical College in Raipur. He has trained at the prestigious Sankara Nethralaya in Chennai and the LV Prasad Eye Institute in Hyderabad. This is where he completed fellowships in advanced cataract surgery, cornea, and anterior segment surgery. Dr. Vikas is not just a skilled surgeon, he is also a trailblazer in ophthalmic research. He has made global headlines by publishing the first ever case of endothelial keratoplasty for congenital hereditary endothelial dystrophy. He has been involved in research on stem cell transplant in collaboration with reputed centers all across the world and, of course, in India, in institutes like AIMS Delhi and Harvard Medical College, USA. Beyond his clinical practice, he's deeply involved in academia. He has authored 46 peer-reviewed articles and scientific publications and presented more than 200 papers at international and national conferences. I can go on and on about all of his achievements. Imagine receiving the Sadhguru Medal for his accomplishments in ophthalmology, a Young Achiever Award by the Indian Society of Cornea and Keratorefractive Surgeons, and the Excellence Award by the Haryana Ophthalmological Society in 2019. He is also the member of several esteemed organizations like the Asia Cornea Society and the Eye Bank Association of India. Not only this, he has also authored chapters in books like Master Techniques in Ophthalmology. He has done it all, from advancing surgical techniques to shaping the future of eye care. Honestly saying, all of this aside, you can find all of this in the LJI Institute website. But something that the viewers don't know is that I initially met Sir as a patient. So my case was going undiagnosed. None of the ophthalmologists knew what to do. I enter LJI Hair Hospital. Sir checks my eye under the slit lamp. 5 seconds in and bang on, he's got the diagnosis. And it worked. The treatment worked perfectly well. I am right here sitting in front of you taking his very interview. So apart from this, it is also his persona that was so awe-inspiring. That is when I knew I have to get you on this show. So thank you so much, sir, for joining us here today. Thanks so much, Arnavi, and it's a privilege, and thank you so very much. And I don't know, you have told so many things. I'm not sure that how much I deserve it, but thank you so much. It's lovely meeting you, and coming with all you guys, and sharing whatever insights I have. Thank you so much, sir. Well, beginning this podcast, it's for the convenience of the viewers that we have decided that we'd segment this podcast into different sections. First, we'll start with Sir's MBBS journey. So, sir, कैसा था आपके लिए? Was MBBS passion or pressure? मुझे लगता है कुछ भी नहीं. तो what I can remember is I was good in studies. तो मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगा कि ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा, मे बी इसको कुछ अच्छा करना चाहिए. तो आई रिमेम्बर वो मुझे बचपन में बोलते थे, बेटा विकास बड़े होके क्या बनेगा, और साथ में प्रॉम्प्ट भी करते थे, बोल डॉक्टर बनूंगा. तो इट्स लाइक आई डिडंट नो दैट तो फॉर मी द आंसर टू व्हाट क्या बनेगा वाज डॉक्टर बनूंगा, बिकॉज दैट हैज बीन फेड इनटू मी.
सो आई डिडंट इवन नो दैट कि उसमें आपको पीएमटी करके टेस्ट होता है. व्हाट आई न्यू वाज कि अगर बायोलॉजी ले लो तो डॉक्टर बन जाते हैं. So that's all I knew. So I don't think there was an option, there was a pressure, there was nothing. It was just like that, and it was purely because of my parents. They wanted me to become a doctor, so they simply inculcated in me, and I said yes, I want to become a doctor. My parents were teachers, and they are teachers. और उस समय बहुत बड़ा चैलेंज था एक्सपोजर का. ये नहीं पता था अगर डॉक्टर बनना है तो कैसे बनना है. ये पता था एक एमबीबीएस करके कुछ होता है और एक कुछ बीएमएस बीएचएमएस ऐसे कुछ होता है. ये पता था कि अगर आप अच्छे रैंक्स आएंगे तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगी और एमबीबीएस अच्छा होता है. एक इंसिडेंट याद है, मेरे मदर को कुछ सर्जरी होना था. उस समय मैं मतलब फर्स्ट टाइम जब मुझे पूछा गया कि क्या बनेगा, दैट इंसिडेंट इज माय मदर हैड सम आई थिंक एक्यूट एब्डोमेन एंड शी हैड टू अंडरगो सम सर्जरी. तो मैं पापा के साथ जाता था उस हॉस्पिटल में. आई वाज आई थिंक 6th 7th स्टैंडर्ड. तो वहाँ मैं उस सर्जन को देखता था. वो सर्जन वाज वेरी ग्लैमरस. उसके लिए बहुत लोग बाहर खड़े होते थे, उससे मिलने के लिए बहुत टाइम लगता था. और वो सुबह सुबह मैं देखता था वो बैडमिंटन खेलने जाता था एक दूसरे अटायर में. तो आई यूज्ड टू थिंक दैट व्हाट हाउ ग्लैमरस इट इज. तो उसी समय आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम पापा ने बोला था कि अच्छा विकास क्या बनेगा, बोल डॉक्टर बनूंगा. so that's how it started. Okay, wow. Why ophthalmology then? How did that come about? So as I said that MBBS was not a choice, it just happened. और इतना पता था मुझे बिकॉज मैं पहले से ही एक आई वाज गुड इन स्टडीज. तो ये था कि आई रिमेम्बर वन स्टोरी. जब मैं 11th में गया तो टिल 10th इट वाज अ हिंदी मीडियम स्कूल और बॉयज ओनली स्कूल. तो 11th में जब गया पहली बार इट वाज अ कोएड एंड इंग्लिश मीडियम ऑल एवरीथिंग. सो फर्स्ट जो टर्म हुई, फर्स्ट टर्म में मेरे मार्क्स थे 55%. आई स्टिल रिमेम्बर इट. वो मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फेल था क्योंकि आई वाज लाइक टॉपर्स ऑल थ्रू. मतलब मेरा 80 से तो नीचे बात ही नहीं था ऐसा वाला. तो पापा सैट विद मी. ही सेड विकास इट्स ओके, टेक इट इजी. आई वाज सरप्राइज कि व्हाई ही वाज टॉकिंग टू मी लाइक दैट. ही सेड देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेडिकली सब कुछ होता है. ही सेड कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मेडिकल नहीं होता है तो आर्ट्स और कॉमर्स भी अच्छा होता है. ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल ही करना है. तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. आई वाज लाइक व्हाट इज ही सेइंग. तो पापा ये बोल के चले गए. तो आई वाज लाइक कि यार एक ही चीज तो आती है मुझे, पढ़ाई लिखाई. मुझ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था कि मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ. आई डोंट हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी. आई हैड अ कम्प्लेक्शन दैट कि मेरा डार्क कम्प्लेक्शन है तो मुझे लोग नहीं पसंद करते हैं. ऐसे टाइप के थॉट्स थे मेरे दिमाग में. लेकिन ये सोचता था कि डॉक्टर मेरे को पढ़ाई लिखाई अच्छी आती है. अब पापा ने उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया. तो आई वाज लाइक अंदर से एकदम ना परेशान हो गया. मैं प्रेस्टीज वाली चीज हो गई कि नाक पे आ गई. ऐसा था. मैं उसी दिन शाम को एक मेडिकल डिक्शनरी खरीद के लाया और फिर पढ़ने बैठा. देन आई रियलाइज कि अरे लैंग्वेज तो का कोई मतलब ही नहीं है, रोल ही नहीं है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से. आई हैड रेड कोशिका उत्तक. इट वाज सेल एंड टिश्यू. तो कोशिका दैट द थिंग द सेल रिमेन्स सेल वेदर यू कॉल इट कोशिका और वेदर यू कॉल इट सेल. अगर आप उत्तक बोलो या टिश्यू बोलो बात चीज वही है, जस्ट लैंग्वेज इज डिफरेंट. तो स्लोली आई स्टार्टेड गेटिंग अ हैंग ऑफ इट. और 11th के एंड में आई वाज थर्ड इन क्लास. 12th में I was first, and I was I think one amongst those 1 or 2 students who cleared all India exam in whole of Ambala. So that I think that was a major landmark or major that conversation had changed the whole story for me. MBBS किया. MBBS was fun. MBBS में मुझे ऐसा हुआ कि मुझे एकदम क्लियर था कि मुझे कहीं बाहर जाना है. बाहर का मतलब अम्बाला के आसपास नहीं रहना है. और मेरे एक कजन थे बहुत डिस्टेंट, वो बॉम्बे में थे. तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं ना सेठ जीएस में जाऊंगा मुंबई में, क्योंकि वो वहां पर पढ़ता था और उसको बहुत हमारे परिवार में बहुत ज्यादा उसको भाव मिलता था, है ना. उसकी बहुत पैम्परिंग होती थी. मैंने कहा यार ये बढ़िया चीज है, वहां जाऊंगा. तो मेरा रैंक था आई थिंक 992 रैंक था. आई स्टिल रिमेम्बर दैट. तो मैंने देखा तो मेरे रैंक तक आते आते वो सेठ जीएस खत्म हो गया, मुंबई खत्म हो गया. पुणे मिला मुझे, बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे. मैंने कहा ठीक है बॉम्बे के पास ही है, एटलीस्ट अम्बाला से तो दूर है ना. तो वो ले लिया. एंड आई थिंक मेरा जो पूना में स्टे था दैट वाज अमेजिंग इन अ वे बिकॉज यहाँ पर पापा टीचर थे और पापा के स्कूल में पढ़ता था. तो आई वाज काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड चाइल्ड. तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता. मुझे ये भी नहीं पता था कि फीस कैसे जमा कराते हैं, कुछ भी नहीं पता था. वहां जाते ही ऑल अलोन. और वो भी तब ट्रेन होती थी, फ्लाइट का तो सवाल ही नहीं पैदा था. आई बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली.
तो ट्रेन में बैठ के जाते थे, अराउंड 36 घंटे लगते थे मुझे अम्बाला पुणे पहुंचने में, और वहाँ पे ऑल अलोन। पहले 2-4 महीने इट वाज अ शॉक, यू नो, आई स्टार्टेड गेटिंग अ बिट ऑफ होम सिक, बट मुझे ऐसा लगा यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो। एंड देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि फीस कहाँ जमा कराते हैं, ऑफिस क्या होता है, लोगों से कैसे बात करते हैं, अपने आप जाके शॉपिंग कैसे करते हैं, सो मेनी थिंग्स दैट आई लर्न। और मुझे लगता है वो पहले 1-1.5 साल में, और उस समय जब रैगिंग भी हो रही है, आपकी इंट्रोडक्शन भी हो रही है, you get groomed, polished very well. I think that changed the whole perspective, and I was very happy. And I think because I was good in studies, although we used to have a lot of fun, मेरे लिए तो MBBS बहुत अच्छी वाली मेमोरी है, जिसमें मतलब we had super fun। और दूर ही थे कॉलेज से, तो घर से तो कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई पकड़ने वाला है, कोई जानने वाला है, do whatever you want to do। At the end of MBBS, we were partying a lot। तो इंटर्नशिप में भी आई स्टिल रिमेंबर कि पढ़ाई लिखाई का तो कोई मतलब ही नहीं था। हमने कहा पूना में बैठे हो भाई, MG रोड है, घूमो फिरो मस्ती करो, दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। तो आखिरी में आते आते लगा कि अरे अगर मेरा ये प्री पीजी क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उसमें देन आई रियलाइज कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दैट एग्जाम, बिकॉज मेरे साथ के बहुत सारे लोग थे जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे या बहुत अच्छी बिजनेस फैमिली से थे। तो मुझे लगा तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने तो जाके प्रैक्टिस में बैठ जाना, मैं क्या करूँगा। मेरे पेरेंट्स टीचर्स, तो मेरा तो कुछ, मुझे ऐसा लगा तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। तो आई वाज डिस्कसिंग इन माय फ्रेंड्स ग्रुप। तो मेरे वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि मैंने बोला कि यार कहीं ऐसी जगह जाना है, बैठना है जहाँ पे टोटली ना गांव टाइप का हो। ही सेड बाय। मैंने कहा बस सिर्फ मुझे पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना, बिकॉज उसके बिना तो मेरा पेपर नहीं होगा क्लियर। ऑफ कोर्स इंटर्नशिप के बाद नहीं हुआ था कि इंटर्नशिप में पढ़ाई नहीं की। तो वन ऑफ माय फ्रेंड राघवेंद्र सिंह, उसको अंशु बोलते हैं, ही सेड कि चल विकास, मैं तेरे को एक जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे तुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई MG रोड नहीं होगी, नथिंग, नो ग्लैमर अराउंड। आई सेड वेयर? ही सेड रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर। उसने कहा हाँ वहाँ चलते हैं, वहाँ बैठ के पढ़ाई करेंगे, वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होगा। तो वहाँ से मेरे पास एक स्कूटर था, स्कूटर डाला गाड़ी में, अपना जितना बैग पैक था सब डाला, और पूना से रायपुर। आई कॉल्ड पापा, आई सेड आई एम गोइंग टू रायपुर। ही वाज लाइक सरप्राइज, तेरा MBBS हो गया, कम बैक टू अंबाला, नो, एंड देन डू समथिंग, देन वेयर इज दिस रायपुर। देन वो नक्शा खोल के बैठ के देख रहे हैं कि कहाँ जा रहा है ये। तो आई लैंडेड इन रायपुर। वहाँ पर हमने बाहर एक फ्लैट वेट लिया और बैठ के पढ़ाई किया, 3 लोग थे हम साथ में मिलके हमने। और वहाँ पर आई वाज लाइक, आई यूज्ड टू गो इन लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी में मैं ऐसे ही एक्ट करता था जैसे मैं एक स्नॉब हूँ, कि मतलब मैं किसी से बात नहीं करता, मुंह नीचे करके जाता था सीधे लाइब्रेरी, ओनली पढ़ाई, बिकॉज MBBS में अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। तो और मुझे मालूम था कि अगर मैंने बातचीत करनी स्टार्ट की बिकॉज ऑफ माई इनहेरेंट नेचर, तो फिर से वही गेड़ियाँ इधर उधर वो सब चालू हो जाएगा। आई सेड कि नो, पढ़ाई। एंड दैट एट द एंड ऑफ व्हेन आई अपीयर्ड, सो आई थिंक अगेन देयर आल्सो उस सेंटर से 1-2 बच्चे ही सिलेक्ट हुए थे फॉर ऑल इंडिया, एंड माई रैंक वॉज आई थिंक 660 और समथिंग लाइक दैट। आई क्लियर दैट। यहाँ तक मुझे ये पता था कि मेरा माइंडसेट मेडिसिन वाला है, मुझे मेडिसिन लेना है, जनरल मेडिसिन, क्योंकि मुझे लगा मेरा लॉजिकल बहुत है, मुझे ऐसे चीज़ों को कोरिलेट करने में बहुत मज़ा आता है, तो शायद मुझे मेडिसिन लेना चाहिए। बट अगेन यहाँ पे मेरे रैंक तक मेडिसिन खत्म हो गया था, कोई कहीं नहीं था मेडिसिन, कहीं एक जगह चेस्ट था, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा अब क्या लूँ। तो मैंने एक सीनियर को फ़ोन किया, मैंने कहा बॉस मेरा रैंक ये है और मेडिसिन चाहिए था, मेडिसिन नहीं मिल रहा, अब क्या लूँ। कहते कुछ भी ले ले, ऐसी कोई फील्ड ले ले जिसमें आगे पढ़ाई ना करना पड़े। I said, what does that mean? He said, opthal, ENT, psychiatry, skin, इस टाइप का कुछ भी उठा ले। I said, fine. Then I saw there was an opthal, और opthal available थी रायपुर में ही, और मैंने वहीं बैठ के तैयारी की थी। तो मैंने किसी को कॉल किया, मैंने कहा कि वहाँ opthal कैसा है, तो उन्होंने वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत सर्जरी मिलती है, ले। तो since I was already used to that surroundings, so I said, okay, fine, ले लेते हैं। तो that's how I landed in ophthalmology, again, not by choice. Okay. Wow. So, for all those of you that still haven't started their preparation, it's fine. You still have hope. Go to Raipur, sit down, and focus. Start studying. You'll get somewhere. And obviously, life and destiny will take you places. Wow, sir. Yeah, I think see, Incredible. अगर आपने MBBS में खूब मस्ती की, it's absolutely fine. बट आपको एंड में तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, और उसमें आई थिंक फोकस इज द अंडरलाइंग फैक्टर। लाइक यू विल हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद ओनली दैट थिंग, सो दैट अगर आपका फोकस क्लियर, आपका डेस्टिनेशन क्लियर है ना, तो आप उसको हिट करोगे ही करोगे। देयर इज नो रीजन व्हाई यू विल नॉट क्लियर दैट। Well, getting into residency,
How does it look like? How many years of junior residency do you have to do? Is senior residency a thing in OFTA? How long will that be? Are you directly going to get into a fellowship after that? Or do you have to crack an exam? Or is there a super specialty? Government से करें, private से करें, DNB करें? Yes, sir. तो MBBS के बाद पापा ने एक गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट का कुछ जॉब्स थी, उसके लिए फॉर्म भरा. आई वाज इन पुणे एट दैट टाइम. ही सेड कि आ जा यहाँ पर, ये गवर्नमेंट जॉब ले ले, इसमें अगर आप 5 साल काम कर लो तो आप एलिजिबल हो जाते हो लोकल सीट्स के लिए, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन विल बिकम ईजी. सो आई वाज लाइक कि गवर्नमेंट जॉब, मतलब मुझे थोड़ा सा एवर्जन था गवर्नमेंट जॉब से. वो इसलिए मैंने ये सुना था कि गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज़्यादा होता है, आपका क्लिनिकल कम होता है. तो and I knew that I'm a kind of person who want to deal with patients, who want to sit with patients. So I said कि नहीं पापा, मैं नहीं वो करूँगा. तो and then you know I went into ophthalmology, मुझे मिल गया बाय चांस. तो वहाँ पर 3 years का MS होता है जैसे, तो वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपोजर था. एक्सपोजर इन द सेंस दैट कैसे सर्जरी करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता था कि ऑप्थेमोलॉजी मतलब कैटरेक्ट सर्जरी. अगर जैसा सीनियर्स बताते थे कि भाई यहाँ पर कैटरेक्ट बहुत अच्छा मिलता है, कैटरेक्ट बहुत अच्छा मिलता है, तो कर ले इज लाइक दैट. एंड इट वाज राइट. मेरे बॉस थे डॉक्टर ए.के. चंद्राकर. ही वाज वेरी 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 स्वीट एंड वेरी, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट मेंटर आई हैव एवर मेट. तो उन्होंने सारा कुछ सिखाया. जब मेरा MS खत्म होने वाला था, सर ने बोला कि विकास क्या करना है आप. मैंने कहा सर प्रैक्टिस करेंगे, अम्बाला जाऊंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा. ही वाज लाइक कि प्रैक्टिस अभी. मैंने कहा हाँ सर, आपने तो बहुत बढ़िया, मैं तो चैंपियन हूँ, आपने इतनी बढ़िया कैटरेक्ट सर्जरी सिखाई. देखो मैंने SICS 200 कर ली है, मैं आई वाज सिटिंग विद माय लॉग बुक, देखो मैंने इतने, आपने फेको भी सिखा दिया है, अब तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, जाऊंगा प्रैक्टिस करूंगा. ही सेड नो. ही सेड कि यू शुड गो टू साउथ इंडिया. आई सेड सर साउथ इंडिया में इडली डोसा मतलब कौन खाएगा यार, मतलब इट वाज लाइक दैट वाज थॉट, फर्स्ट थॉट. ही सेड नो, यू शुड गो टू साउथ इंडिया. सो देन आई थॉट कि अब बॉस हैं, यू नो, बॉस ने बोला है, तो मैं थोड़ा गुरु भक्त टाइप का पर्सन हूँ. तो मैंने कहा बॉस ने बोला है, ठीक ही बोल रहे होंगे, मुझे नहीं पता होगा, चलो मान लेते हैं. सर को पूछा, मैंने कहा सर कहाँ जाऊँ साउथ इंडिया में. कहते कहीं भी, बट स्टे इन साउथ, प्रैक्टिस, यू नो, वर्क इन साउथ इंडिया फॉर 2-3 years एंड देन ओनली यू शुड गो बैक. आई सेड फाइन. देन समहाउ आई वेंट. तो वहां पर मैं शंकर नेत्रालय में गया. वहां पर एक शॉर्ट टर्म फेलोशिप थी, 2 साल की, 2 महीने की, और इट वाज ऑन फेकोइमल्सिफिकेशन. वहां से मैंने वो किया. और उसके बाद आई डिडंट नो व्हाट टू डू. देन आई वेंट टू CMC वेल्लोर. मुझे पता लगा चेन्नई के पास ही है वेल्लोर, वहां पर सीनियर रेजिडेंसी मिल जाती है. तो दैट इज दे यूज्ड टू कॉल इट नॉन PG रजिस्ट्रारशिप. तो वहां पर मैंने अप्लाई किया, वहां पर मिल गया. 6 महीने वहां काम किया, बट तब तक पैसे खत्म हो गए थे, पैसे नहीं थे. तो मैंने कहा अभी जॉब करनी पड़ेगी कुछ. तो वहां से फिर मैंने एक जॉब की 6 महीने के लिए. तो उस दौरान एक इंस्टेंस हुआ, which again was a major turning point in my life. So I was doing a phacoemulsification, एक cataract surgery की एक टेक्निक, जिसमें एक this patient was one-eyed, and this was during one of my job, जब मैं जॉब कर रहा था. उस सर्जरी में एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई कि कॉर्निया उसकी मिस्टी हो गई एकदम, उसका एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो गए. तो आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी गिल्टी. मुझे लगा कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये दूसरी आंख से देखता नहीं है. जब भी मैं OPD में उसे देखता था तो मुझे बहुत गिल्ट महसूस होता था. तो मैंने कहा यार ये तो मेरी वजह से ऐसा हो गया, ये ना ऐसा नहीं होना चाहिए था. तो आई यूज्ड टू इमेजिन, आई यूज्ड टू ड्रीम कि काश मैं इसके एंटीरियर चैम्बर में चला जाऊँ, एक माइक्रो रोबोट बन जाऊँ, इसका एंडोथेलियम चेंज कर दूँ. दैट आई यूज्ड टू यू नो इमेजिन. उसी समय एक कॉन्फ्रेंस हुई थी चेन्नई में, विच आई यू नो हैपेंड टू जस्ट अटेंड. वहाँ पर देयर वाज समवन हु हैड कम फ्रॉम US. इट वाज डॉक्टर मार्क टेरी, जो वहाँ पर एक सर्जरी दिखा रहे थे. और वहाँ पर मैंने पहली बार ये एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी सर्जरी देखी, जो पूरे वर्ल्ड में जस्ट आई थी. जब मैंने उसे देखा था, आई वाज लाइक स्टन्ड, आई वाज फ्रोजन. आई थॉट कि अरे ये तो सेम चीज तो है जो मैं सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था, ड्रीम कर रहा था, ये सच में होता है क्या. सो एट दैट टाइम आई लॉक्ड इट. आई सेड फाइन भाई, मैं तो कॉर्निया के लिए बना हूँ, मैंने तो कॉर्निया ही करनी है, और इंडिया में कहाँ बेस्ट है वहां से करनी है. वो ऐसा टाइम था जब मैंने निकाला कि फेलोशिप करनी चाहिए, और फेलोशिप कहाँ कहाँ होती है. तो उस पर्टिकुलर कॉर्निया के लिए मैंने देखा कि एल बी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर कॉर्निया. वहां पर मैंने अप्लाई किया और वहां पर गया. वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं चैंपियन नहीं हूँ, जो सर बोलते, जिनको जब मैंने, मेरे सर ने पूछा था कि भाई तू कहाँ प्रैक्टिस करेगा, तो मैंने बोला था कि सर मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो चैंपियन हूँ. आई वाज नॉट चैंपियन. आई केम टू नो दैट ऑप्थेल्मोलॉजी इज नॉट जस्ट कैटरेक्ट.
is from O to Y. It has a lot of things that I didn't know. And I think that platform at LV Prasad Eye Institute that gave me a lot of insights कि क्या होता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है, कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है. It changed my perspective towards my patients, towards academics, towards surgery, towards peers, towards patients, I think towards whole life. So I think that was a major turning point. तो फेलोशिप में आप सिर्फ एक सुपर स्पेशलिटी ही नहीं सीखते हो, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो सीखते हो. और आई थिंक that was a major turning point for me, and that's how I landed up in fellowship. आज की डेट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है. सी अगर किसी ने ऑप्थेल्मोलॉजी किया है तो उसके बाद आप ऑनलाइन जाके AIOS ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की वेबसाइट है, उसमें अवेलेबल है कौन कौन सी फेलोशिप्स होती हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स में होती हैं. जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे यहाँ पर भी फेलोशिप्स होती हैं. तो पर्सन कैन चूज, ही और शी हैज टू डिसाइड कि कौन सा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हैं उसमें, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन अप्लाई एंड यू कैन टेक दैट. रिगार्डिंग सीनियर रेजिडेंसी, यस यू कैन डू सीनियर रेजिडेंसी ऑल्सो. 3 साल की होती है वो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में कई जगह है, बट उसके लिए आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ पर अच्छी होती है, कहाँ पर अच्छा एक्सपोजर है, कहाँ पे टीचिंग पैटर्न अच्छा है, मेंटर्स कितने, वो आई थिंक देखना चाहिए. ओवरऑल आई वुड सजेस्ट दैट मे बी डूइंग अ फेलोशिप इज अ बेटर आइडिया फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट. एंड देन आफ्टर दैट इफ यू फील दैट आपको थोड़ा और एक्सपोजर चाहिए, देन यू कैन डू सीनियर रेजिडेंसी इफ यू वांट. So that means just getting a mentor is one of the biggest things in life. Of course, it goes without saying. So I think I was very, very, very lucky that Dr. A.K. Chandrakar told me that to go to South India, because that changed the whole life, whole scenario. Yes, sir. And later on also, जब fellowship भी खत्म हो गया, उसके बाद again, I was clear right from day one कि मुझे practice करना है. बिल्कुल clear था, मुझे job नहीं करना है, मुझे कहीं institution में नहीं जाना है, मुझे अपना खुद का बनाना है, ये मुझे बिल्कुल clear था. And वो कैसे आई डोंट नो, वो it was there. Okay. And मुझे ये भी क्लियर था कि मुझे अंबाला ही वापस आना है. So when I was sitting with my mentor after my fellowship, my mentor was Dr. Virendra Sangwan. He said, Vikas, okay, so what's the plan now? I said, sir, I want to go back to Ambala and start my practice. So he said, okay, fine, but you have a good academic mind, you have a good research mind, why don't you stay back in institution, and here itself we are going to give you a job straight away. And that was a major compliment. So he said, your wife is also a retinal surgeon, so why don't you both join here? So मुझे I still remember my conversation with him. मैंने उनको बोला कि sir, it's a great compliment and thank you so much for considering me. Having said that, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ रहूँ या नहीं रहूँ, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. मेरे जैसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पर, such a big institution. But अम्बाला कोई नहीं जाएगा. Maybe that might give me an opportunity to go back to that place and create something which doesn't exist, which can impact many lives. So maybe many years down the line I will feel that my life was worth it. So मैंने somehow सर को convince कर लिया कि मुझे अम्बाला जाना है और practice करना है. So you are right that having a mentor is extremely important. Before getting into residency, or how do we choose the best college then, or how do we choose the best fellowship? Is it word of mouth? Are we asking seniors? Are we going on LinkedIn and contacting different people that have finished their fellowship from there? How do we approach it? I think very good question. So मैंने कैसे किया था, I can tell you. जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे क्लियर हो गया था मुझे कॉर्निया करना है, तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि कॉर्निया कहाँ अच्छा होता है, तो लोगों ने बताया कि एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट में अच्छा होता है. तो नेक्स्ट चीज मैंने क्या किया, मैंने कहा वहां के पास आउट के किसी के फोन नंबर का मुझे जुगाड़ करना है. तो मैंने जो वहां से पास आउट हुए थे, 1 साल हो गया था, 2 साल हो गया था, आई ट्राइड टू फाइंड आउट देयर फोन नंबर्स, आई कॉल्ड देम एंड अंडरस्टूड कि क्या है वहां पे, क्या होने वाला है. वहां से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इनसाइट्स मिला. उस समय दिस इज लाइक वे बैक 2003 2004, उस समय बहुत कम इंस्टीट्यूशंस थे जहां पर फेलोशिप होती थी. वहां के पास आउट से बात करने से बढ़िया कुछ नहीं है. So and then I talked to few others who had done their cornea from other institutes. वहां से मुझे समझ में आ गया कि ये बेस्ट है, तो मुझे यही चूज करना चाहिए. अभी भी मुझे ऐसा लगता है, अभी there are a lot of data that is available online, and these people you can go on LinkedIn profile, वहां पर आप देख सकते हैं पास आउट कहाँ से हुए हैं,
talking to those peoples, I think that is the best thing, that will give you the best insights rather than just believing on what is written in the websites. I think it's very convenient for us आज की date में. We have Instagram and we have all of these social media apps. I think You can connections definitely have. connect with those people and talk to them that how was it, and they can tell you यहाँ से मैंने ये सीखा, मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वहाँ के मेंटर्स कैसे हैं, ओवरऑल करिकुलम कैसा है, कितना एक्सपोजर है, all those things you can definitely get from that. As someone who's currently providing a fellowship yourself in your institute, what are certain things that you look at before selecting a candidate? Like, I think your institute selects only one candidate per session. So that's the odds of getting into this fellowship are very few. तो जब मैंने अप्लाई किया था एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट में, उस समय भी एक ही सीट थी वहां पर, और उसके लिए वो लोग 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट करते थे. So it was very tough, and I still remember me and another person was selected, and 1 महीना दोनों काम करते थे various consultants के साथ. At the end of 1 month again इंटरव्यू का सेशन होता था, और उसमें वो एक को चूज करते थे, एक को निकाल देते थे. It was so tough. Okay. So and it was stressful also. So how did I deal with that stress? I still remember 1 हफ्ता हुआ था, and पहले वीक में I was trying to impress upon people. मैं मतलब कंसल्टेंट्स की लिटरली बटरिंग कर रहा था उनको, मतलब I was not myself. I was putting up a face, a mask, and trying to impress upon people कि ये मेरे को पसंद कर लें, या मैं इनको impress कर पाऊँ. At the end of 1 week, I was stressed up like anything. I was about to have a nervous breakdown, and I was thinking that maybe I should talk to a psychiatrist and understand that how to deal with these kind of emotions. But suddenly I was going to the hostel. Suddenly एक insight आया. I picked up the phone and I called my wife. I said कि देखो ऐसा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है. Having said that, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन 3 हफ्ते तो अभी हैं. इस 3 हफ्ते से पहले तो मेरे को कोई नहीं निकाल सकता ना यहाँ से. So I am going to give my best shot to learn whatever I can in these 3 weeks. And after that, if they didn't select me, then it's their loss. They'll not get a strong ambassador like me. Yes, sir. That was like, I think I was trying to manage, or I was trying to hack my system so that I don't get into the trap of that stress, which was going leading me to a nervous breakdown. So that really helped. कैसे, आपने जैसे पूछा कि व्हाट आर द ऑड्स एंड व्हाट डू वी सी, बाद में मैंने अपने मेंटर से पूछा था कि सर, मैं सिलेक्ट हुआ था उसके बाद, राइट. तो मैंने पूछा था कि सर आपने मेरे में क्या ढूंढा, या दूसरे में क्या नहीं था, व्हाई डिड यू सिलेक्ट मी, because the other person who was with me, he was very good academically, everything. So I didn't know that whether I'll really get selected. So he said that Vikas, we selected you because you had fire, you had hunger, you wanted to, you had a lot of proactivity. So I think we here also do the same. So what fellowship program we have started it, the inspiration came from LV Prasad Institute only. वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मेंटर्स को इतना ज़्यादा मानता हूँ, उनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है. तो इट्स लाइक, तो मेरा मेंटर तो मेरे साथ पूरी लाइफ रहने वाला है, राइट. तो इट्स लाइक यू कैन इम्पैक्ट समबडीज लाइफ who's going to remember you throughout your life, throughout their lives, right? So I thought कि maybe ऐसा कुछ करना चाहिए. हम भी वही देखते हैं इंटरव्यू में या इसमें कि how much this effort is going to make an impact. So if the person is really interested, is what is it that he want to do, how much hunger he has or he or she has, so that it's impactful, because we are going to put a lot of energy into it. उसको बताना, डिस्कशन करना, so many things are there in fellowship. तो क्या वो एफर्ट वर्थ है? That's all we see. Okay. So, a mentor and a mentee relation, how is it formed? Is it just very natural? Like, again, you're working with your consultants, and that's how maybe naturally established हो जाता है, or is it something you have to ask? Can you be my mentor? Of course, first thing that see, I'll have to ask somebody to be my mentor. So suppose I'm going in for a fellowship, of course that is an indirect way of telling please be my mentors. वहां पर ऐसा होता है, suppose you have 5 6 7 mentors and suddenly आपको लगता है कि एक पर्सन के साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो रही है, आपको लगता है, या मे बी यू चूज कि इनमें से कौन सा मुझे ऐसा लगता है जिसकी भाषा मुझे समझ में आती है, इसकी लैंग्वेज मुझे समझ में आती है, and that's how you develop that bond. And then if
I personally feel that if you're really sincere, if you can convince that person that whatever knowledge or whatever knowledge I'll get from you, I'm going to implement, make an impact. If you somehow convince him कि वो जो अपना टाइम देगा उससे इम्पैक्ट आएगा, उसको सेटिस्फेक्शन कंटेंटमेंट, अगर वो उस चीज से कन्विंस हो गया तो आई एम श्योर दैट ही विल बी हैप्पी टू बी अ मेंटर, एंड देन mentoring also is a privilege, I feel. How important is research work during your residency days important in the selection of a fellow? So it's very important because again, suppose if I have to choose someone for a fellowship, so I'll see if he or she has some research background that will really help, because at our institute we have this research going on all the time. So if somebody already has that background, तो इजी हो जाएगा ना. लाइक सपोज उसको प्रोजेक्ट दिया तो वो कर लेगा. अब सपोज उसको बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है तो उसका रिज्यूमे का वेट तो कम हो ही जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट. सो सपोज यू हैव एन एक्सपोजर ऑफ रिसर्च, दैट रियली हेल्प्स. एंड इवेंचुअली लेटर ऑन आल्सो आप कितना प्रेजेंट करते हैं वेरियस मीटिंग्स में वर्सेस आप पब्लिश करते हैं, पब्लिकेशन का ज्यादा इम्पैक्ट है, ज्यादा रोल है, ज्यादा वेटेज है. Personally, I've read a couple of your research articles. I am an absolute fan of how you title them. It just adds a lot of glitter to the gray. So things like getting hooked, eyelash and lacrimal punctum, or just using those metaphors here and there. Not all is lost. The journey of a deep periorbital burn. Where's your inspiration coming from? How do you know this is something that I want to research on? How does the idea hit you? I think, first of all, these two titles were not given by me. These were given by my co-authors. I think Dr. Swati and Dr. Purvasha, they had given these titles. But how do I choose a research subject is, that comes in day-to-day practice. When we are seeing patient, we see what is the problem. कि यहाँ पर ये समझ नहीं आता है, वहाँ पे we see there is some problem, and then you try to find out some solution for that. You try doing different things, and then you see in that space who all are people in the world who are working. You talk to them, meet them, and then from those insights you'll get कि हाँ इसमें शायद ऐसा कर सकते हैं. And that's how research develops. But I think you need to have a desire for that. If you have a desire for that, that I want to not only practice evidence-based medicine, I want to contribute towards those evidences also. If you have that desire, the research question comes. If you are sitting in your clinic, there are n number of research questions that comes you day in and day out. Okay. How did you manage to associate with AIIMS Delhi and Harvard Medical School? So there was a project we had published in stem cell transplant, and then there was a multi-center study. So at that time, that particular technique, that SLET, that was getting done at a very few centers. So at that time, we decided that we are going to do a multi-center study where we are going to involve all the institutions who are doing this surgery, apart from the one which had where it came from, like LV Prasad Institute. So wahan se we had you done that, and then once you go in various meetings, when you publish, you automatically develop that network. Like I knew people who are doing in a SLET in Harvard or AIIMS or there, so it is very easy to connect and sit together and maybe write a common paper, and which can add a lot of value in the literature. What are some of these ophthalmological conferences that you would list out maybe for our viewers? You see, that depends. There are two different kind of conferences. One is generalized, and one is niche, but one particular specialty. So, like All India Ophthalmological Society does a annual conference called All India Ophthalmology Conference. That's a very good one. It is comprehensive. It has all the specialties in it. And then you have various conferences which are related to one particular specialty. Like, for example, in India, we have a Cornea Society of India, right? I'm a General Secretary of Cornea Society of India. So there we have this annual meeting called Caracon. So that involves only cornea surgeons. Similarly, we have GSI, Glaucoma Society of India, VRSI, Vitreoretina Society of India. Like that, different fields are there. So if somebody who's doing general ophthalmology, who's doing residency, say is doing
MS ophthalmology or anything, they can definitely go in a meeting where it's a comprehensive thing, so that they get an exposure of everything. Once you choose a segment, you choose a specialty, then you love to go in those meetings which are catering to your specialty, because you come meet a lot of people who are doing same kind of work, have different kind of experiences, and you learn a lot from there. It's not only cornea. Then we have something called as ocular surface workshop, which is related not only cornea, only on ocular surface. So that depends. So all kind of specialities and subspecialties have meetings. Okay. So based on your choice, based on what is it that you want to get out of meetings, is what you attend for. Generally, what I do is whenever I go in a meeting, any conference, like recently I had gone to a Asia Cornea Society meeting, I generally go, and on my way back I write down what did I learn from there. Okay. And then next I make 3 columns. First I write the what did I learn. Second I write what is my action point. What is it that I am going to do differently now. And third column is a timeline, by what time. That really helps me. So I think during this course, while I came into practice, how you can grow is these meetings, and important thing is learning from those meetings. Many times we go in a meeting, in a conference, we chill around, socialize, network, and then once you are back, you are doing the same thing again. To me, I want to learn something from there. I want to do something different. It may be one thing. It may be only one thing that I might change my pattern. I'll change the way I manage these patients, maybe add another drug that I'm not using now, maybe add another surgery which I'm not doing so far, something like that. And that gives a lot of that's a very good platform to learn and grow. आज की डेट में पता है आपको क्या चाहिए? आप पूछिए क्वेश्चन. You need a question. Answer is available. Okay, very true. I think more important is the question. आप कॉन्फ्रेंस जाना चाहते, क्यों जाना चाहते? आप किसी सीनियर से मिलना चाहते, क्यों मिलना चाहते हो? क्वेश्चन क्या आपके दिमाग में? अगर आपके दिमाग में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है, अरे कॉन्फ्रेंस जाना है, वर्कशॉप अटेंड करना, करना क्या उस वर्कशॉप में अटेंड आपको? वो पता ही नहीं होता है. जस्ट इसलिए कि क्योंकि आप मतलब जनता जा रही है तो मैं भी जाता हूँ, मैं जाऊंगा तो फिर फोटो खींच के फेसबुक पे डालूंगा. हाँ देखो मैं वहां गया, मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, मैंने ये किया, मैंने सर्टिफिकेट लिया. That's fine. That's also okay. But is it adding value to you? Know your why. Why are you doing this? आप कर क्यों रहे हो? चाहते क्या हो आप? That I think is the most important thing in whatever you do, and I think that's the crux. Bottom line वही है. ऑर्थो करना है, क्यों करना है ऑर्थो? या साइकेट्री करना है, क्यों करना है? मे बी सो मैं क्या करूंगा आपकी जगह होऊंगा. सो देयर वाज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जब फेलोशिप खत्म हुआ तो जब बॉस ने बोला कि आप क्या करना, जब मैंने बोला था प्रैक्टिस करूं, उससे पहले एक था, तो हाउ डिड आई डिसाइड कि मुझे प्रैक्टिस करना है. तो प्रैक्टिस तो करना है, लेकिन कैसे करना है तो मुझे समझ नहीं आ रहा था. तो किसी ने बोला कि भैया अंदर से आता है, ये आत्मा की आवाज है. दैट वाज लाइक ट्रैप टू मी कि ये कहाँ से निकाल, मैं कौन से अंदर से, लीवर से आएगा कि किडनी से आएगा, कहाँ से आएगा ये, कि अंदर की आवाज कैसे पता चलता है ये. तो मुझे तो वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था. मतलब दैट वाज टोटल फिलॉसफी जो somebody was telling me. तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैंने कहा हैक करते हैं इसको भी, कुछ डिफरेंट करते हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी फील्ड के 4 या 5 लोगों को सिलेक्ट किया जो मेरे से 15-20 साल आगे थे, राइट, जो पॉपुलर थे, जो सक्सेसफुल थे. मैंने कहा ये तो फाइनल, मैं सक्सेसफुल तो होना ही है, मैंने कोई डाउट ही नहीं. तो लेट्स सी एक रिसर्च वाले विंग में, एकेडमिक में कौन सबसे बढ़िया मुझे सक्सेसफुल लग रहा है. एक पर्सन जिसने बहुत अच्छा एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बनाया हुआ है, ऐसा कोई चूज किया. एक ऐसा चूज किया जो जॉब करता है, कुछ दिन यहाँ जॉब करता है, फिर कुछ दिन वहां जॉब करता है, फिर कुछ दिन वहां पैसा कमा रहा है. अच्छा, फिर एक ऐसा. तो ऐसे अलग अलग लोग चूज किए मैंने. उसमें से एक नाम जो चूज किया था वो था डॉक्टर GN राव. डॉक्टर GN राव वॉज अ फाउंडर ऑफ LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट. तो मैंने कहा कि चलो अगर मैं ये अपने आप को इनकी स्किन में डालता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं ये बन गया, तो क्या मुझे मजा आ रहा है, क्या कंटेंटमेंट कैसा आ रहा है. तो मैंने जब अलग अलग में डाला तो मुझे एक पर्सन में एकदम सिंक हो गया. मैंने कहा वाह, GN राव वाली कहानी बहुत अच्छी है. क्यों? बिकॉज ही कुड क्रिएट समथिंग व्हिच डिडंट एग्जिस्ट. मैंने कहा ये चीज बढ़िया लग रही है. तो मे बी वो जो सो कॉल्ड किडनी से आएगी आवाज, लीवर से आएगी आवाज, शायद ऐसे पहचानते हैं.
wow. क्योंकि एक दूसरे को मैंने देखा जो who's earning a lot of money, who's in one practice, उसके बाद एक दूसरे कॉर्पोरेट में, उसमें मुझे I was not feeling comfortable. मैं कहा ये तो बहुत बोरिंग है यार. It's like या ऐसा ऐसा everything is good, you know, but it's just that my heart sank with this particular human being who's, you know, 20 years 25 years down the line. तो मैंने कहा कि अगर मैं 20-25 साल के बाद ऐसा हो जाऊंगा तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है आज की डेट में. मस्त लग रहा था. मैंने कहा चूज कर लो भाई ये रास्ता. Okay, wow. That's absolutely incredible, honestly. So, anyone that's watching that wants to start their own hospital, what are some of the challenges that they're going to face? What are some of the challenges that you faced? And what advice do you have for मैं them? ये बता सकता हूँ कि what did I face. So see, I wanted to start my practice. मैंने आपको अभी बताया. मेरे दिमाग में दो बहुत बड़ी डायलेमा थी. One, I didn't have money. So what happened was again, you know, there's a conversation between me and Dr. Sangwan. Dr. Sangwan is my mentor. I went to him at the end. I think 2 हफ्ते रह गए थे मेरी फेलोशिप में. मैंने कहा सर थोड़ा प्रॉब्लम है. He said, tell me what is the problem. मैंने कहा सर मैंने प्रैक्टिस करना है. हाँ कहते तूने बता दिया तो जा जाके कर. मतलब what is the problem then? मैंने कहा I have 2 problems. He said what? And मैंने कहा first is I don't have money. He said what does that mean? I said see मैंने कैलकुलेशन किया है. मैंने इंस्ट्रूमेंट क्या खरीदना है पूरा कैलकुलेशन करके लेके गया था. It was like 16 lakhs or something. मैंने कहा मुझे 16 लाख के आसपास पैसा चाहिए. जबकि मेरा और रुचि हम दोनों के पास मिला के हमारे पास 15,000 रुपए थे. रुचि इज माई वाइफ. सो मैंने कहा पेरेंट्स तो मेरे टीचर रहे हैं. उनके पास जो भी कुछ था उन्होंने तो हमारी एजुकेशन पे लगा दिया. तो आई डोंट हैव एनीथिंग. 15,000 रुपए है और मुझे 16 लाख रुपए मिनिमम चाहिए टू स्टार्ट अ प्रैक्टिस. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है पैसे कहाँ से आएंगे. तो दिस इज माई मेजर कंसर्न. He said okay, and what is your second concern? I said the second concern is I want to go in Ambala and start practice there. And I'm told by many people that there are 3-4 very big names over there. और छोटे शहर में एस्टेब्लिश होना इतना आसान नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी बड़ी प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती हैं. तो लोगों का एक ट्रेंड बना हुआ है वो वहीं जाते हैं. तो वहां पे एग्जिस्ट होना मतलब बहुत मुश्किल है. बहुत सारे लोग आए चले गए तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं. He said okay. Challenge number 1, you don't have money. He said you don't need money to practice. I was like seriously? You don't need money to practice? तो मैंने कहा सर तो इंस्टीट्यूट में रहे हैं. सर ने तो प्रैक्टिस की नहीं. इनको क्या पता. You know, that was a thought that came in my mind. But then later on I thought that he is very intelligent. He is very senior. He has so much. He has a global exposure. Right? He has been to all countries and then I knew that he is my well-wisher. I was 100% sure. I thought again कि शायद ये जो बोल रहे हैं ना मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है. मे बी मेरा मेच्योरिटी लेवल अभी इतना नहीं है जो ये बोल रहे हैं. तो मे बी आई शुड लिसन टू इट. आई सेड ओके सर आप बोल रहे हो कि पैसा नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए. ही सेड यू नीड ओनली वन थिंग टू प्रैक्टिस. आई सेड व्हाट इज दैट. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग एक और बाबागिरी आएगी अभी कोई ऐसा वाला से आएगा. देन ही सेड कि ऑल यू नीड इज डिजायर. मैंने कहा सर वो तो बहुत ज्यादा है. वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. कहते दैट्स इट. रेस्ट थिंग विल फॉल इन प्लेस. समहाउ मैंने कहा ये बात मान लो भाई. समझ नहीं आ रही ना. कट कॉपी पेस्ट. उसके ऊपर दिमाग लगाना ही नहीं है कि क्या हुआ कैसे होगा. मान लो जस्ट बिकॉज ये सेड मान लो. तो समहाउ दैट गॉट इनटू माय ब्लड. आई सेड ठीक है मान लो इट थिंग विल फॉल इन प्लेस. आई सेड इट्स ओके. एंड यू नो व्हाट आई केम बैक. आते ही मुझे एक जॉब मिल गई जिसमें मुझे आई थिंक 60-70 हज़ार रुपये मिल रहे थे विच वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी यू नो. एंड देन मैंने पहला इंस्ट्रूमेंट खरीदा जो 1,20,000 रुपये का था. आई स्टिल रिमेंबर. मैंने अपने किसी सीनियर को बोला कि यार 1,20,000 है इसको प्लीज पीडीसी में करवा दो कुछ. तो उसने मुझे बोल दिया 4-5 महीने के. मैंने पोस्ट डेटेड चेक दे दिए. तो दैट्स हाउ आई एक्वायर्ड माय फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट. एंड टुडे यू नो you name a technology in the world and we have it. So anything right from femtosecond lasers and whatever it is. So he was right. Things fall in place. Wow. Second concern was that कि कैसे प्रैक्टिस करूंगा मैं. ऑलरेडी यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं established हैं. Then he said विकास सी इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है. He showed me a data right कि इंडिया में डॉक्टर की कमी है. स्पेशलिस्ट की तो और भी कमी है. और अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट हो तो फिर तो मतलब आप बड़े सॉर्ट आफ्टर पर्सन होंगे. एंड इफ यू आर ऑनेस्ट यू आर कंपैशनेट आप ऐसी वैल्यूज को प्रैक्टिस करते हैं जो आपको यहाँ से सिखाई गई है देन यू आर अ रेयर स्पीसीज. गो सिट एनीवेयर यू विल फ्लरिश.
तो फिर अगेन मैंने कहा मान लेते हैं यार सर ठीक ही बोल रहे होंगे, अच्छा ही बोल रहे हैं कि मतलब कि तो एंड दैट इज अ फैक्ट, इफ यू आर रियली पेशेंट सेंट्रिक, इफ यू आर कंपैशनेट, यू कैन, मतलब कि अगर मेरा पेशेंट है, मैं ये सोच पा रहा हूँ कि इस पेशेंट की जगह मेरी अपनी सिस्टर होगी, मेरी अपनी बेटी होगी, मेरे अपने फादर होंगे, मदर होंगे, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं वो चीज सोच पा रहा हूँ जो मैंने वैल्यू सिस्टम एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट से लिया, आई थिंक दैट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट बिकॉज द अदर ह्यूमन बीइंग बहुत आसानी से ऑथेंटिसिटी स्मेल कर लेता है वो पेशेंट, चाहे वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का हो, कोई भी आईक्यू हो, कोई भी ईक्यू हो, वो आपकी ऑथेंटिसिटी को जज कर लेता है, वो समझ लेता है कि आप क्यों बोल रहे हो, एक चीज बोल रहे हो तो, और आई थिंक दैट वैल्यू सिस्टम इज व्हाट connects with another human being. So I think these were the two challenges for me at that time, and all I have is some babagiri wala answer for that. Okay, wow. It's very inspiring though. And again, the importance of just putting your faith in your mentor and just saying, उन्होंने कह दिया, it'll happen. Just have trust, have faith in yourself and just go on, go Then ahead. and do it. on the way you can test it also, no? Yeah, On the way you can test it also, that is it right? Like I said, when I was going through the journey, the first year, second year, third year, I was seeing that whatever he said, it was true. Very true. Experience firsthand and just Of that course, I think of backs course. you up, gives you confidence कि सही path पे हैं हम. Correct. Okay. So now there's something that I read. It's a little technical. LGI Institute is now empaneled with HDFC Aditya Birla Haryana government. What is empaneling in this sector? So that's very very important, because when you start your practice, when you build a hospital, so you need to get some empanelments that helps increase the patient footfall. Because suppose आज मैं भी अपनी कोई ट्रीटमेंट के लिए कहीं जाता हूँ, मेरे पास एक इंश्योरेंस है, तो मैं ये चेक करता हूँ कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर मेरा ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाएगा. Okay. तो अगर मुझे पता चलता है 2 हॉस्पिटल्स हैं, दोनों हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अच्छे हैं, दोनों का रेटिंग वेटिंग सब अच्छा है, दोनों के पेशेंट्स से मैं मिल चुका हूँ हु आर सेइंग कि हाँ डॉक्टर्स अच्छे हैं, अगर एक हॉस्पिटल में मेरा कैशलेस हो जाता है, एक में कैशलेस नहीं होता है, तो आई टेंड टू प्रेफर अ हॉस्पिटल विच वेयर आई कैन गेट माई कैशलेस ट्रीटमेंट डन. उसके लिए हॉस्पिटल को सेंड से क्या करना होता है, वेरियस कंपनीज के साथ, वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एम्पैनलमेंट करना होता है, so that you can show your documents, you let them inspect you. उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है NABH accreditation, हम एक NABH accreditation लेते हैं, like LGI Institute is an NABH accredited hospital. Then based on that we apply in various companies, various PSUs, like CGHS, ECHS, all those things, so that those patients can get a cashless treatment from my hospital, and we will give this bill to the insurance company, and the money to us come from the insurance company. So that really helps in increasing your footfall. Okay, that makes a lot of sense now. Thank you so course. much. Well, all of this aside, as you mentioned, you were getting super stressed. जब आप fellowship में, it was the two of you, and how your wife came in and how she helped. Just all of this leads us to physician burnout, which is very rampant in today's society. Even maybe पहले भी रहता होगा, but it's getting highlighted these days. So, what is the prevalence of physician burnout in this specialty, ophthalmology? See, my perspective, my take on this is, हम बर्नआउट कब होते हैं? हम बर्नआउट तब होते हैं जब हम वो काम कर रहे हैं जो हम एक्चुअली करना नहीं चाहते. So for example, I want to work for 10 hours, and I'm doing something which I'm enjoying a lot. I don't think I'll get burned out. आप मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने के बाद बर्नआउट होती है, या आप दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हो तो कोई बर्नआउट थोड़ी होता है, राइट? बिकॉज वो आप कर रहे हो क्योंकि वो आप करना चाहते हो. सो बहुत बार ऐसा होता है, लाइक आई केम इन द मॉर्निंग, से 8:15 8:30, ओटी हुआ, ओपीडी हुआ, फिर ओटी हुआ, कभी कभी शाम को 6:30 बज गए, 7 बज गए, 11-12 घंटे हो गए हैं. एट दैट टाइम ऑल्सो अगर मैं किसी पेशेंट से बात करता हूँ, तो आई एम एब्सोल्युटली फाइन. आई एम स्माइलिंग, आई एम क्रैकिंग जोक्स, आई एम जस्ट मेकिंग हिम फील कंफर्टेबल. Many times my staff ask me कि सर आप अभी तक कैसे, अभी फ्रेश हो? So that's what I tell them, this is something which I enjoy. So ये तो मुझे रिफ्रेश कर रहा है ना मेरा वर्क, तो how can I get burnt out? I will get burnt out,
Suppose I want to work for 10 hours. After 10 hours, I have to go somewhere at dinner. मैंने वाइफ के साथ कमिटमेंट किया हुआ है, मैंने वहां पे कमिटमेंट किया और मैं कमिटमेंट फॉलो पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर गिल्ट आ रहा है, गिल्ट आ रहा है, अरे वहां जाना था, नहीं जा पाया, यहाँ फंस गया। वो गिल्ट जब आता है तब उस समय मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना नहीं चाहता हूँ, and that will cause all this so-called stress and all those imbalances and all. So I think we need to, how I deal with it is I am clear that what is it that I want. मेरा वर्क, मेरा प्रोफेशन मुझे बहुत ज्यादा कंटेंटमेंट देता है, तो मुझे लगता है कि जिस चीज में मुझे मजा आ रहा है तो उससे तो बर्नआउट नहीं होगा, बट हाँ, अगर मैंने कहीं कमिट किया हुआ है तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ensure that my commitment is followed. Like today there were a few things, but I told Preeti कि नहीं, अनवी को आज कमिटमेंट किया हुआ तो we'll do it. Thank you so much, sir. That really means a lot. Just your time, all of this. Another thing on burnout, I think I see a lot of medicals talking about कि अरे देखो इसमें कितना टाइम लगता है, या मैं बहुत सारे यंग डॉक्टर से भी मिलता हूँ, अरे इसमें तो कितना टाइम लग जाता है, 10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, कितनी देर में सेटलमेंट है, हमारे इंजीनियर फ्रेंड तो कितनी जल्दी सेटल हो गए. सो दिस इज अ रेगुलर कन्वर्सेशन दैट आई हियर. आई थिंक वहीं पर हम एक थॉट डाल रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो बहुत बढ़िया नहीं है काम, वहीं पे डालो. सो टू मी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है ना, स्टाइपेंड भी आपको अच्छा खासा मिलता है, you take any medical course, which means that you are earning, you are already settled as far as finances are concerned, and then you are growing also. आप स्पेशलिटी कर लेते हो, आप सीनियर रेजिडेंसी करते हो, उसमें भी यू आर अर्निंग एंड यू आर ग्रोइंग ऑल्सो. तो व्हाट जनरली मुझे क्या लगता है, तो थॉट प्रोसेस का इशू क्या है कि आप इमेजिन करते हो कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर, राइट, और उसको आप एक इंजीनियर फ्रेंड के साथ कंपेयर कर रहे हो. इट्स जस्ट दैट वो थोड़ा सा ज्यादा अर्न कर रहा है. यू आर नॉट कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल. वहां पर टू मी इट्स लाइक इट्स माई चॉइस दैट आई एम डूइंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन. इट्स माई चॉइस. मुझे किसी ने डंडा लेके थोड़ी बैठा है मेरे ऊपर कि नहीं करो. इट्स माई चॉइस. It's my choice that I'm on, and I'll improve. I'm going to improve my skill set, which I'm going to use throughout my life, right? So to me, आप बहुत सारे डॉक्टर से मैं बात करता हूँ जो बोलते हैं अरे इसमें इतने प्रॉब्लम है, ऐसा इशू है, बट अगर उनसे पूछो कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, and they'll say डॉक्टर बनाना चाहते हो, which means that in this field it's a fantastic field, lot of contentment, and you can make a lot of impact in this particular field. बस नजरिया बदलो अपना. Very important. Yes. Do you think work-life balance is a myth? मुझे तो समझ ही नहीं आता वर्क लाइफ बैलेंस मतलब क्या होता है. मतलब इज इट दैट वर्क इज नॉट योर लाइफ, और इज इट दैट लाइफ में वर्क नहीं होता. मतलब हाउ, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क लाइफ बैलेंस? ये मुझे क्वेश्चन कभी नहीं समझ में आया. टू मी वर्क इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, राइट? Yes. लाइफ में वर्क है ना, तो वर्क और बैलेंस तो ये हुआ, एक दो अलग चीज है कि अलग चीज है, उसमें बैलेंस करो. वर्क और लाइफ कैसे अलग अलग कैसे हैं? टू मी, जब whenever we talk about work life balance, what actually we want to say is sometimes I am doing something which I don't want to do. I am doing something, जब मुझे, अब जैसे मैंने बोला कि मुझे एक कमिटमेंट है रात में डिनर पे जाने का, और मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ. दैट इज अ प्रॉब्लम. दैट डजंट मीन वर्क लाइफ. इट इज नॉट, डजंट मीन कि वो मेरी लाइफ है और ये मेरा वर्क है. सीरियसली, ये मेरी लाइफ नहीं है. मैं अपनी वेकिंग आवर्स का 70% यहाँ बिता रहा हूँ अपने वर्क में. हाउ इज इट पॉसिबल दैट मेरी लाइफ नहीं है? दिस इज मेजॉरिटी पार्ट ऑफ माई लाइफ. इज जस्ट दैट अगर मैं वर्क, ये मेरा वर्क चल रहा है और यहाँ पर मुझे पता चले मुझे पीटीएम के लिए जाना है अपने बेटे के लिए, राइट, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले से ब्लॉक करूंगा वो टाइम कि देखो मुझे 1 घंटे के लिए ब्रेक लेना है, तो मैं अपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह शेड्यूल करूंगा. सपोज मैं वो नहीं करता हूँ और घर पे जाके गाली पड़ती है वाइफ से कि देखो पीटीएम थी आज गए नहीं, ऐसा, then that is something, वहां से गिल्ट जनरेट होता है. तो आई थिंक जो भी लोग ये बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, वो दे आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ गिल्ट, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग व्हिच दे डोंट वांट टू डू at that given point of time. So to me, work life balance doesn't make any sense to me, at least. Great time management skills. Again, as you keep saying, time blocks are very important. Yes, I think that is something very, very important. And here you will have to draw a line. कि भाई मेरी, so for example I said that my OR starts at 8:30.
So I'll ensure that I am in the hospital around that time. And I say that यहाँ पर मैंने मना कर दिया, इसके बाद में नहीं होगा. कभी कभी क्या होता है, यू फील कि नहीं, अभी मैं से संडे को भी चला जाता हूँ, स्पेशली इन द बिगनिंग. आपको लगता है मैंने अपने इस्टेब्लिश करना है, मैंने अपने पेशेंट्स का लोड बढ़ाना है, आई वॉन्ट टू इंश्योर दैट पीपल नो मी. तो वहां पर यू गो अ स्टेप अहेड. संडे को भी काम करोगे, मॉर्निंग में भी काम करोगे, इवनिंग में भी काम करोगे. तो वहां पर अगर वो आपकी चॉइस है, राइट, इफ आई डिक्लेयर 1 year is my choice that I am going to work on Sundays, evenings, morning, because I want to ensure that people know me, I want to ensure that blah 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 blah, then it's absolutely fine. Problem lies कि भाई टाइम मैनेजमेंट इशू क्या आता है, मैं कर रहा हूं संडे को, राइट, बट मैं बोल रहा हूं अरे देखो मुझे संडे को भी करना पड़ रहा है. Why are you doing that then? अगर आपने पहले से डिक्लेयर किया है कि दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड यू आर डूइंग दैट, देन देयर विल बी नो इश्यूज एट ऑल. टाइम मैनेजमेंट अगेन, it's more of priority management. Very true. So many times, I remember regarding this time, I was in 11th, physics की ट्यूशन थी. हमारे सर थे और ओम सानी सर, फैंटास्टिक फिजिक्स टीचर. तो सर के पास बैठा हुआ था, हम 7-8 लोग थे, ऐसे करके सर्कल में बैठते थे, सर नोट्स लिखवाते थे. तो इट वाज मंडे. सर ने मुझे, मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए बता रहा हूँ, तो सर ने मेरे को बोला कि विकास वो असाइनमेंट थी उसका क्या हुआ, वो हो गया? तो दिस वाज मंडे. मैंने की नहीं थी. मैंने कहा सर वो क्या था ना, संडे था कल, फिर मेरा केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट बाकी था, मैं सुबह उठा केमिस्ट्री करता रहा, फिर उसके बाद बायो का वो करना था सर, टेस्ट आ रहा है, फिर मैं बायो करता रहा, फिर मम्मी ने मेरे को वहाँ भेज दिया, मैं वहाँ वो सामान लेने चला गया, फिर 7 बज गए सर, और उसके बाद ना मैं बहुत थक गया, मैं सो गया. So I said, okay, fine. He said, okay, let me give you a hypothetical situation. At 7 p.m, same, तूने केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट किया, बायो का किया, मम्मा ने भेजा था वो किया, 7 बजे थक गया. अब 7 बजे तेरे पास एक कॉल आती है, और जो तेरी क्लास की सबसे सुंदर लड़की है वो तेरे को बोलती है कि कैन यू कम फॉर अ डेट. What will you do? I was like embarrassed, totally embarrassed, blushing all over. इधर मनी मन बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहे हैं सर, मतलब ना सबके सामने क्या बोल रहे हैं. तो I couldn't say anything. And he said, मैं बताता हूँ तू क्या करता. तू इमीडिएटली उठता, शावर लेता, डिओड्रेंट परफ्यूम लगाता, देखता रहे स्कूटर में पेट्रोल है कि नहीं है, फटाक से जाता, उसे पिक करता, मूवी दिखाता, ड्राइव पे जाता, डिनर भी करता, रात को 12:30 घर पे आता, और उसके बाद भी तो फ्रेश होता. Very true. He said, टाइम का रिलेटिव है, मतलब आपके इंटरेस्ट क्या है उसके लिए, वो डिफाइन करता है कि आपका टाइम कितनी जल्दी खत्म होता है और कितना लेट खत्म होता है. तो तुझे 7 बजे से 12:30 का टाइम पता भी नहीं चलता गायब कहाँ हो गया, जबकि तुझे सुबह 7 से 7:30 एक टाइम पता है कि आप केमिस्ट्री किया, कभी ये किया, कभी ये किया. उसमें आपका इंटरेस्ट है, यू फीलिंग गुड अबाउट इट, तो आपको पता नहीं टाइम कहाँ चला गया. वहां पे आप आप धो रहे हो, अरे कभी फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है. इट्स लाइक वो होता है ना, अभी वन इज अ पोनी, वो अपने आप दौड़ रहा है, एक गधा है, उसको मार रहे हैं, वो दो थोड़ा आगे गया, फिर रुक गया, फिर आगे धक्का मारा. इट्स लाइक वो थक जाएगा पहले. तो यू आर गेटिंग टायर्ड बिकॉज you are doing something out of compulsion, and then when you are going on a date, you are not tired because that was something you are enjoying. So time management to me is it's priority management. Then at that time he told me that don't tell me that you didn't have time, tell me that was not in your priority. तो फिजिक्स की असाइनमेंट तेरी प्रायोरिटी में नहीं थी, ऐसा नहीं था तेरे पास टाइम नहीं था. So to me it's like more of a priority management than time management. Wow, that's an incredible metaphor, and just such amazing mentors. I'm wow. I was very lucky, very very lucky. Wow. So one of the last things, LJI Institute नाम कहाँ से आया, and how important is spirituality to you, if it holds any value? Okay, so spirituality, I think वो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है. It's just that आप कब उसको पहचाने, या वो जब आप एडवर्सिटी में बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं तो अपने आप स्पिरिचुअलिटी आ जाती है. तो या तो वो नेचर इनिशिएट करती है, नहीं तो आप खुद इनिशिएट करते हो. इवेंचुअली यू विल हैव टू गेट इनिशिएटेड. So regarding LGI Institute, it is, the full name is Lala Jagannath Eye Institute. Lala Jagannath ji was brother of my grandfather, and he was the one who was shifted from a very small village
to Ambala and then established a lot of things. On the way, he learned Ayurveda. He used to, give medicine to so many people around. He was in RSS also. I remember him going for all those morning parades. Uh, he was a very important personality in our family because of him my father could study, and the whole family could get established. And because my father was a teacher, I could also become a doctor. So I think just as a Thanksgiving, we thought that we will name him after him to get his divine blessings. And he was one of the personalities I was deeply inspired with, so that's why we named it. Our logo of LGI Institute, we took it from Agya Chakra. So Agya Chakra, as you know, that is the third eye, which is it's a gateway to the wisdom, to the knowledge, and it syncs a lot with our purpose of LGI Institutes, and that's why we kept that as a logo. And spirituality is important. I think when I do a surgery, at the end of the surgery, I always talk to God and say, "Oh God, please take care of my patient." And even when I see challenging patients, I'm seeing in the OPD. At that time, also, I silently send a prayer that please take care, because I know. Or even though I have a science background, I want everything should have a rationale, but I know that we know only 5-10%. So rest is something we don't know yet, and the one which we don't know yet, we call it spirituality. Okay, wow. Well, wrapping things up, we have a tradition in the odds. We call it the triad of odds. So here you go. As you can see, this is a diary we hold for all our guests. You need to write three things. First, your favorite song. Second, your a couple of kind words for the next guest, because it's important to spread that kindness around. And lastly, a question that you have for the next guest. We will also see what the previous guest had in mind me. for you. Yes. फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारे हैं भाई. Top three भी चलेंगे. एक ही देता हूँ. तो आप लोगों ने जगजीत सिंह जी उसने सुना है, तो उसका एक सॉन्ग है शहर का, तेरे आने की जो खबर है. अमेजिंग सॉन्ग. काइंड वर्ड फॉर काइंड वर्ड Next guest. नेक्स्ट गेस्ट. Can be anything. जब खबर महके तेरे आने की, जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके. एंड द क्वेश्चन. तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके. If you flip to the previous page, you'll be Yes. able to see. So, what do you see yourself as after 20 years? Wow, beautiful. So, when in 2014, somebody told me that do a small exercise. उन्होंने मुझे क्या बोला कि imagine yourself in 2024. And somebody has come to you and they want to do a write up on your institute. What would you tell them? तो मैंने 2014 में एक राइट अप लिखा था 2024 के लिए कि उसमें मैं क्या होंगे. तो और उस समय उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसा एज्यूम करो कि एक जिनी मिल गया जो बोल रहा है आपको बोल क्या चाहिए, तुझे सब मिलेगा. तो सर लॉजिस्टिक्स हटा दो, कैसे होगा, हाउ, वो हटा दो, whatever you feel like. So I had written that. Whenever I see that article, I feel very happy because we are on that track. But since I'm very aspirational, तो उसका मैंने शायद 30-40% ही achieve किया है. But I'm happy that we are on the right track. After 20 years, I think I see LGI Institute as one of the most premier institution in
in the globe. Maybe we are training a lot of people. We are making a huge impact in humanity around, and I think at that time I'll feel a lot of I'll draw a lot of contentment out of the fact that maybe we have made a mark in impacted more than 1 million or maybe 10 million human beings the life maybe by that time we'll have very good education system in ophthalmology, maybe where there'll be no, at least in India, there'll be no one who will be less than anybody in the world. Amazing vision, sir. Well, your journey and your personality, looking at you, anyone can get inspired to become an ophthalmologist. Honestly, let alone that, even a doctor. You're one of those people, honestly, personally for me, I look up to and I say, wow, aisa banna hai mujhe. And again, there are just so many things to learn from you, so many questions to ask. But I'm obviously afraid time holds us captive. So hopefully, we have an episode 2 with you. Of course, I would love to. Would love to. Thank you so much for all the incredible energy you guys have, and it's a fantastic, I think, initiative. And I was deeply impressed that you took it up, and you are, and as one of you was saying that although you could come to me, talk to me, get inspired, and many other speakers, but then you want to capture it. You are putting up an energy. You are taking your time out. You have a lot of things to study, do other things also. Still, you are doing it for so many undergraduates around. Amazing thing. I am deeply impressed. I wish you all the very best. And one point that you said that you want to become something like, so I don't think you need to become like me. You can pick up few good traits, incorporate in you, but I think you are Arnavi, you will remain Arnavi. You will become something that nobody else can. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing all your experiences. And again, most importantly, your time. Thank you so much for everything. I hope all of you enjoyed listening to this interview as much as I enjoyed taking this interview. Until next time. Thank you so much, everyone. Thanks.